These are my credentials. I am Shriti Sharma and my referral code is Sharma ji. Okay, all of you should write the CAT Combat this Sunday. Very helpful. Apart from that, uh, do make it a point to download the Unacademy Learning app. All right. And you can use the code Sharma ji, unlock the free special classes, start learning from there. Today we already had a free special class at 4 in the evening, which was again pertaining to reading comprehension. All right, let me just check if I'm properly online. Oh, yes, looks like I am. So we are going to do, hello Himanshu. We are going to do reading comprehension right now. तो सबसे पहले reading comprehension में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है, you have to look at the questions. तो पहले questions देखेंगे because it's a long passage to read. पहला question है, what describes the organization of the passage? यानी कि क्या organization could be anything. It could be like अच्छा organization of the passage is chronological order कि in order of occurrence of things कि in terms of time वो हो सकता है. Organization could be कि पहले introduction है, फिर explanation है, फिर example है, फिर conclusion है. तो किस order में कैसे चीजें आई हैं, that is what organization means. Alright, तो यही आपको check करना है. That means while reading the passage, you have to write down next to every para or maybe in a rough sheet of yours, you have to write down what's happening here. अच्छा ये paragraph introduction है, ये paragraph example है, ये paragraph argument है, ये paragraph counter argument है, ये सब करते रहेंगे, then you will be directly able to solve question number 1. Question 2 कह रहा है, the passage discusses all of the following solutions to password fatigue except बताना है, कौन सा solution discuss नहीं हुआ है, आपको ये बताना है. Okay, which is the best synonym of mitigate? वैसे तो हमने vocabulary में mitigate बहुत बार किया है, but यहाँ पे if you don't remember the meaning, you can definitely figure it out from the given context. याद रखिएगा keyword है mitigate. Basically लिख लीजिए rough sheet पे. Next is according to the passage, SSO authentication software may be safer than password management software because. Alright, it's a very specific question कि ये software may be safer than password management और reason क्या है? तो we will quickly go through the passage and when we come to this question then we'll have to go back to that portion जहाँ पे ये चीजें दी हैं and then try to answer it. The next one is in paragraph 6 the author notes that the use of biometrics raises ethical questions concerning privacy. Which of the following situations could be used as an example to illustrate this point? This is more of a critical reasoning kind of a question. Para 6 से related है, idea है use of biometrics raises ethical questions. अब उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन से एग्जाम्पल में ये सिचुएशन इलस्ट्रेट हो रहा है कि हाँ बायोमेट्रिक्स डू रेज एथिकल क्वेश्चंस कंसर्निंग प्राइवेसी. फिर 7th क्वेश्चन है इन द लास्ट पैराग्राफ द ऑथर्स टोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. सो यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन कंप्लीटली थ्रू आउट द पैसेज, यू ओनली हैव टू चेक द लास्ट पैरा. गुड इवनिंग अंकित, हेलो, गुड इवनिंग तन्मय, गुड इवनिंग सौरभ, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल. चलिए तो पैसेज देखते हैं. लेट्स लुक एट द पैसेज हियर. यहाँ से शुरुआत होती है पैसेज की. यू विल हैव टू गिव इट अ रीड. अच्छा, Saurav has already written the meaning of mitigate here. Okay. सेजल, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, क्या अभी आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना? ट्वेंटी 2022 कैट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना. साथ में ऑफ कोर्स वी टीच अ लॉट ऑफ वोकैब एंड स्टफ एज वेल, रीजनिंग एंड ऑल, बट मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एनी टाइम होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आरसी के लिए जो भी चीज़ चाहिए वाइल डूइंग पैसेजेस, आपको जो भी डिफिकल्ट लगता हो कि आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फोकस ऑन वर्बल रीजनिंग. अगर आपको लगता है कि आपको वर्ड्स नहीं समझ आते हैं तो फोकस ऑन वोकैबुलरी.
बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है. सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट वन पैसेज अ डे एटलीस्ट, एंड उसके अलावा रीडिंग डेफिनेटली करिए. एज इन न्यूज़पेपर पढ़िए, और अभी बहुत टाइम है एग्जाम आने में, तो बुक्स पढ़िए. स्टार्ट रीडिंग बुक्स. जब एग्जाम क्लोज होता है देन आई सिंपली से कि अच्छा ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स पढ़ो, बट अभी आपके पास टाइम है, बिकम अ रीडर, रीड गुड बुक्स. अभी तो बहुत टाइम है सेजल, तो ऑफ कोर्स टाइम इज डेफिनेटली एनफ राइट नाउ. मतलब ऐसा तो है नहीं कि वी हैव जस्ट 1 or 2 months लेफ्ट वेयर वी से कि आपको आपको टाइम है पर 8 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो तो सीन है नहीं. अभी तो आप डेली का डेली का एक डिलिजेंटली फॉलो करो, एक शेड्यूल अपना बना के. आप जितना टाइम दे पा रहे हो, बट डेली टाइम दो. इट शुडंट बी लाइक डेली तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम दो, इंग्लिश को भी, DILR को भी, और मैथ को भी. जितना भी आप दे सकते हो. अगर आपके पास 3 स्पेयर आवर्स है तो एक एक घंटा तीनों को दो इंडिविजुअली. अगर 3 घंटा नहीं है, एक ही घंटा है, तो फिर उसमें 20 20 मिनट्स दीजिए तीनों को. और इंग्लिश के लिए रीडिंग तो करना शुरू कर दीजिए. आई मीन टुनाइट इटसेल्फ और टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स जस्ट गेट अ बुक इन हैंड एंड स्टार्ट रीडिंग. अगर आपको कुछ इजी पढ़ना है तो यू कैन रीड एनी बुक बाय अगाथा क्रिस्टी. अगाथा क्रिस्टी की कोई भी किताब आप उठाइए. अगाथा क्रिस्टी इज द नेम ऑफ द ऑथर. आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी किताब उठा सकते हैं और पढ़ सकती हैं. अगाथा क्रिस्टी के बुक्स का वोकेबुलरी अच्छा है, आपको वोकैब में भी हेल्प मिलेगा, एंड इट्स इंटरेस्टिंग. वहाँ से शुरुआत कीजिए, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल बुक्स पे भी जा सकते हैं. जो हाइड हो गया, ओके आई टेल यू व्हाट इज हिडन हियर. आई थिंक एक्सट्रीमली के बाद लिखा है एक्सट्रीमली सिंपल पासवर्ड्स. एक्सट्रीमली के बाद लिखा है, आई विल राइट इट हियर, सिंपल. या मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ एक्सट्रीमली के बाद क्या लिखा है, ठीक है. सिंपल पासवर्ड्स, फुल स्टॉप, फिर लिखा है while, and then the next sentence starts. These practices make it easier to remember login information. They also make it it they also make के बाद लिखा है, make के बाद लिखा है it exponentially easier for thieves to hack into accounts. हेलो सचिन. तो बेसिकली पहला पैराग्राफ हमको बता रहा है डिटेल में व्हाट इज पासवर्ड फटीग, है ना. उसी मतलब एक भूमिका बांधी गई है, दिस एन इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू कैन वेरी इजली अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस content is not new for you. This is something that you face in your lives. So as a contemporary passage becomes easy for any student because you can relate to it. You have, like, being an average computer user, you have between 5 and 15 usernames and passwords, I think more, to log into email accounts, social networking sites, discussion boards, news and entertainment sites, online stores, online bank accounts, and other websites. For people who use email or other internet applications at work, the number of required combinations may surpass 30. इतना कुछ याद करना मतलब it's like next to impossible.
फिर दूसरे कोड्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मेंटेनिंग अ मेमोराइज्ड लिस्ट ऑफ लॉगिन credentials has grown so prevalent it's like present everywhere that it has a name and the name is password fatigue. Having to remember so many different passwords is irritating but it can also be dangerous क्योंकि इम्पॉसिबल होता है टू रिमेंबर एवरी यूनिक पासवर्ड तो बहुत लोग हैंड रिटन लिस्ट रखते हैं एंड दे कीप इट नेक्स्ट टू देयर कंप्यूटर समटाइम्स और कुछ लोग क्या करते हैं बहुत सिंपल सा पासवर्ड रखते हैं फॉर ऑल देयर अकाउंट्स दो इट्स easier to remember the login information in this case but it makes it very easy for thieves to hack into the accounts. नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए क्या लिखा है single sign-on SSO, single sign-on authentication and password management software can help mitigate this problem, but there are drawbacks to both approaches. ये दो अप्रोच हैं एक है SSO और दूसरा है पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैन हेल्प मिटिगेट दिस प्रॉब्लम फिर लिखा है मिटिगेट कर सकता है प्रॉब्लम को बढ़ाएगा तो नहीं डेफिनेटली कम करेगा बट दे आर ड्रॉबैक्स टू बोथ अप्रोचेस तो यस तो आपने जो बताया था मिटिगेट का मतलब करेक्ट है क्या बताया था टू डिक्रीज यस सौरभ SSO authentication can be used for related but independent software systems. With SSO, users log in once to access a variety of different applications. Users only need to remember one password to log into the main system. The SSO software then automatically logs the user in to other accounts within the system. This SSO software is typically used by large companies, schools, or libraries. Password management software क्या होता है such as KeePass or Password Safe is most often used on personal computers. These software programs, which have been built into many major web browsers, store passwords in remote database and automatically remember users' passwords for a variety of sites. तो बेसिकली थर्ड पैरा में बताया गया है कि SSO एंड पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है और शुरुआत किए हैं इस बात से कि ये प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं और ड्रॉबैक्स भी होते हैं पर अब पहले तो ये बताया कि प्रॉब्लम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ये होता क्या है दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन थर्ड पैरा ये होता क्या है SSO या फिर पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर व्हाट आर दीज थिंग्स इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड नेक्स्ट देखते हैं अब आएगा प्रॉब्लम सो यू कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम हियर देखिए आप लोग यूज करते हैं तो द सच अ पैसेज बिकम्स लाइक एक्सट्रीमली इजी फॉर यू यू आर एबल टू रिलेट टू इट नाउ इसलिए बड़ा आसान हो जा रहा है विच इज़ अ ग्रेट थिंग सो नाउ द प्रॉब्लम्स आर गिवन नो SSO से शुरू किया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड देन द ऑथर गोज ऑन टू से कि पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में भी सेम ही प्रॉब्लम्स होंगे बट एक एडेड प्रॉब्लम होगा पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दैट इवन इफ द कंप्यूटर स्टोलन तो भी एवरीथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड उसके अलावा द एंटायर डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आर गिवन हियर vulnerable is like also makes them vulnerable is like makes it exposed or open to attack makes it weak. Then, of course, the next para is although most websites or network systems allow users to recover or change lost passwords by providing email addresses or answering a prompt, this process can waste time and cause further frustration. What is more, recovering a forgotten password is only a temporary solution. It does not address the larger problem of password fatigue.
ऑलराइट, रिकवरिंग पासवर्ड के बारे में बात हुई है। अब एक नया पॉइंट आता है। सम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ पासवर्ड्स कंप्यूटर्स शुड रिलाई ऑन बायोमेट्रिक्स। दैट इज अ सजेशन। कंप्यूटर्स, ये जो लिखा है ना, कंप्यूटर्स रिलाई ऑन बायोमेट्रिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलाई करते हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है वो सब्जंक्टिव मूड में है। इट्स अ सजेशन दैट दे शुड रिलाई। द वर्ड शुड इज मिसिंग क्योंकि ऑलरेडी लिखा है सजेस्टेड दैट। So some computer scientists have suggested that instead of passwords, computer rely on biometrics. मतलब computers should rely on biometrics instead of passwords. This is a method of organizing human users based on unique traits such as fingerprints, voice, or DNA. Biometric identification is currently used by some government agencies and private companies, including the Department of Defense and Disney World. All right. While biometrics would certainly eliminate the need for people to remember passwords, the use of biometrics raises ethical questions concerning privacy and can be expensive to implement. इस पे एक question है, remember, which example illustrates this point? ऐसा एक question है आगे. The problems associated with SSO, password management software, and biometrics continue to stimulate software engineers and computer security experts to search for the cure to password fatigue. पूरा passage mainly password fatigue के बारे में है. All right. Yeah, most of the companies use biometric as attendance system. That's true. Okay. Until they find the perfect solution, however, everyone will simply have to rely on the flawed password system currently in place. Flawed matlab the erroneous one जिसमें already faulty hai, but they'll have to depend on it. So let's take a look at the questions now. Uh, See, Shivam na, I guess that's her name. अगर आपको एक्सेल बनाना भी है VARC के लिए तो यू एक्चुअली, हम लोग ये तो डिस्कस करते हैं दैट यू नीड टू डिवाइड द सेक्शंस एंड डू ईच सेक्शन एवरी डे. उसके अलावा VARC में भी एक कंपलसरी आपको डेली क्या करना है वो भी देख के रखो. क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हो वो आप वोकेबुलरी का कर सकते हो, और जब जो वोकेबुलरी का क्लास किया वो रिवाइज कर सकते हो. बट रीडिंग एज एन एक्टिविटी इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन एवरी डे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप एक एक्सेल मेंटेन कर रहे हो तो रीडिंग में जॉनर्स कवर करो, यानी टाइप्स. ये नहीं होना चाहिए कि आज अगर आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा है तो कल भी आप वही पढ़ रहे हो. एवरी डे यू शुड रीड समथिंग डिफरेंट एज इन समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट जॉनर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा. या फिर आप बुक्स रीडिंग करना शुरू करो, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था. बट बुक्स के लिए भी यू नीड टू कीप अ टारगेट कि कौन सा किताब उठाया है. इफ द बुक इज अ शॉर्ट रीड देन यू शुडंट stretch it over a month. If it's a short read then finish it off in 1 week or in 4 days. की अपना टारगेट रखिए कि डेली 30 पेजेस करेंगे और उस तरह से अपना किताब ख़त्म कीजिए. तो बेसिकली इंग्लिश के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड स्टडीइंग इज़ कि डेली रीडिंग तो करना ही करना है. और डेली रीडिंग बहुत ही यूज़लेस हो जाता है जब आपको लगता है ना कि ज़्यादा प्रिपेयर किया पर स्कोर कम आ रहा है, यानी कि स्मार्ट रीडिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीडिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमने पढ़ लिया बट वो कुछ यूज़फुल नहीं हो रहा है. वो तभी होता है इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू. तो ऑफ कोर्स आप उस एरिया में बहुत तेज़ हो जाते हैं, बट उस एरिया का पैसेज आएगा या नहीं, यू डोंट नो. सो द वैरायटी हैज़ टू बी केप्ट इन योर रीडिंग. एक दिन फिलोसफिकल पढ़ा, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, अगले दिन मे बी यू रेड समथिंग नैरेटिव, तीसरे दिन समथिंग साइंटिफिक पढ़िए, फिर सोशल साइंसेस से रिलेटेड. देयर आर मेनी टॉपिक्स, लिटरेचर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड.
तो सब कुछ आपको टिक करते रहना है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तभी तभी तो वो चीज़ें जल्दी समझ आती है व्हेन यू आर रीडिंग पैसेजेस। जैसे आज का पैसेज आप सबको जल्दी समझ आ रहा है बिकॉज दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू नो, बट देन वी मेनी अ टाइम्स वी डू पैसेजेस जो एकदम ही ऊपर से निकलता है क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। सो वो वैरायटी कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा तो वोकैब एंड ग्रामर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आप हमारे साथ क्लासेस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एनफ है, नथिंग मोर रिक्वायर्ड फॉर वोकैब एंड ग्रामर। बट रीडिंग इज द चैलेंज। और रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा, यस, रीडिंग के लिए रीडिंग तो करते ही रहना है, जॉनर्स कवर करते रहना है, और वर्बल रीजनिंग जो हम करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत प्रैक्टिस करना है। बट रीडिंग साथ में करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप ध्यान दोगे कि लेट अस से यू आर डूइंग ऑल द क्लासेस, यू आर डूइंग क्रिटिकल रीजनिंग हियर एज वेल। हम बहुत क्वेश्चंस कराते हैं, आप कर रहे हैं, पर हर क्वेश्चन करने में आप वो बच्चे हैं जिनको 5 मिनट लग रहा है, हर क्वेश्चन पे 7 मिनट लग रहा है। तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, पर 7 मिनट या 5 मिनट लग रहा है, दैट्स टू मच टाइम। तो एग्जाम तक अगर वो हाल रहा कि 5 मिनट्स लग रहा है एक क्वेश्चन पे, तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा बिकॉज स्पीड नहीं बना आपका। स्पीड इसलिए नहीं बना क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है डिफरेंट जॉनर्स का। तो वो एक बेस कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर एट एनी ऑफ द टॉपिक, इफ़ यू आर नॉट अ फास्ट रीडर, मतलब जल्दी पढ़ा और जल्दी समझा, तो नथिंग वुड वर्क। नो, कितना भी स्ट्रैटेजी सीख ले, दुनिया भर का स्ट्रैटेजी आता हो, दुनिया भर का एलिमिनेशन टेक्निक आता हो, पर जब जल्दी पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग। और स्पीड के लिए यू हैव टू कीप दैट वैरायटी। ये नहीं कर सकते कि आज रीडिंग किया और कल किया ही नहीं, परसों किया। आई मीन यू हैव टू गेट इनटू दिस हैबिट, हम भी करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं कि हमेशा तो बैग में एक किताब रहता ही रहता है। आई मीन यू गाइस आर, यू नो, आप लोग ऑफ कोर्स आज के जनरेशन के हो, आप अपने मोबाइल में एक किताब रखो हमेशा, कहीं पे भी बैठ के किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो। वैक्सीनेशन का मैं वेट कर रही थी, देन ऑल्सो आई वाज रीडिंग अ बुक ऑफ माइन। तो वो रीडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको शुरू करना पड़ेगा। So what do you guys think should be the answer of consistency and reading most importantly? ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं 4 दिन से vocab कर रहा हूँ and I'm very satisfied। नहीं, वो vocab के साथ वो रीडिंग नहीं छोड़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। तो बताइए फर्स्ट का आंसर। इफ़ यू नीड मी टू गो बैक तो बताइएगा, ठीक है। लुक एट ऑल द ऑप्शंस योर, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये आंसर हो सकता है तो इट्स ओके, बट इफ़ यू फील नहीं, यू नीड टू टेक अ लुक वंस, तो डू डू टेल मी, आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड्स। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर पैसेज। तो आपको क्विकली हर पार्ट देखना होगा कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पासवर्ड फटीग क्या होता है। इट्स अ प्रॉब्लम, क्लियरली इट इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट पैरा टेल्स अस कि व्हाट इज पासवर्ड फटीग। सेकंड पैरा टेल्स अस कि ऑफ कोर्स आई मीन लोग क्या तरीके यूज करते हैं, यू नो, सम ऑफ देम राइट लिस्ट एंड सम ऑफ देम जस्ट हैव द सेम पासवर्ड फॉर एवरी वेबसाइट एंड स्टफ, बट ये डेंजरस होता है। उसके बाद आते हैं सोल्यूशन पे, सिंगल साइन इन एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, बट यहाँ पे ही बता दिया कि इन सोल्यूशन के ड्रॉबैक्स भी हैं, जो भी हो। उसके बाद सोल्यूशन पे एलाबोरेट करते हैं कि सिंगल साइन इन होता क्या है, पासवर्ड मैनेजमेंट होता क्या है, उस पे एलाबोरेट कर रहा है ऑथर कि हाउ डू दीज हेल्प, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बता रहा है कि ये जो सोल्यूशंस हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, यू नो, हाउ दी सोल्यूशंस आर लाइक एसएसओ हो गया या पासवर्ड मैनेजमेंट, हाउ आर दे वल्नरेबल।
मतलब वो कोई हैक कर ले तो बेसिकली आपका हर अकाउंट हैक हो जाता है। इस तरह से बता रहे हैं कि हाउ दीज सॉल्यूशंस हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक उसके बाद क्या? Then it also talks about recovering your lost password. Then it talks about another solution that is biometrics. फिर बता रहा है कि biometrics में भी problems हैं, questioning that solution as well. फिर कह रहा है कि ये जो भी solutions हैं सभी solutions में problems हैं but अभी कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक perfect solution ना मिले हमको ये faulty system पे ही depend करना पड़ेगा. So that is the organization of the passage. Now, the passage organizes ideas in order of increasing importance. No. How do we know? How do we know what is more important? The introduction, the definition of password fatigue is more important, या फिर the solution is more important, या फिर the loophole in the solution is more important. ऐसा कुछ दिया मतलब कहीं कोई हिंट नहीं है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है. बी देखते हैं. ऑथर प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट एंड देन यूजेस एविडेंस टू डिसमिस ऑपोजिंग व्यूज. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. आर्ग्यूमेंट का मतलब ऑथर ने एक स्टैंड लिया, उसके बाद ऑपोजिंग व्यूज को वो डिसमिस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑथर ने कोई पर्सनल स्टैंड नहीं लिया है, वो हमको बता रहा है कि पासवर्ड फटीग एक प्रॉब्लम है, वो बता रहा है उसके सोल्यूशंस क्या हैं, पर उसके बाद वो ये भी बता रहा है कि उसका भी जो सोल्यूशन है उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी लूप होल्स हैं. तो वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि काउंटर कोई उसको काउंटर कर रहा है तो वो रिजेक्ट कर रहा है काउंटर आर्ग्यूमेंट को. बिकॉज बी बीटा ऑप्शन इज सेइंग दैट ही इज रिजेक्टिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, he uses evidence to dismiss opposing views. He is not doing that. C. The author explains the problem. Yes, the problem is password fatigue. Explores solutions like वो password management वाला, SSO वाला, biometrics वाला, and then dismisses the solutions as inadequate. Yes, the solutions are flawed. C हो सकता है, hold पे रखिए. D. The author explains the problem. Correct. D में explains the problem. सही है. Then persuades readers to agree with his or her solution. No, he does not. उसका कोई पर्सनल सोल्यूशन तो है ही नहीं, और वो हमको परसुएड नहीं कर रहा है कि अग्री करो सोल्यूशन के साथ. वो सोल्यूशन बता रहा है और सोल्यूशन में जो कमियां हैं वो भी बता रहा है. तो डेफिनेटली नॉट डी. E, the author explains the problem. Correct. Contextualizes the problem. Okay. Ultimately dismisses the problem as an unnecessary concern. He dismisses it. It would refer to the problem. He does not dismiss the problem. He does not dismiss the problem of password fatigue. He says it's a genuine problem. So it cannot be E. Answer is C. Quite a few of you got it. Yes. Tanmay, Ankit, Himanshu, Saurav. Yes, all of you got that. Correct. Yes, Rahul. All right. I think Rahul, you see na कि E में गलत क्या है? Dismisses it, the problem. He does not dismiss the problem. Second देखिए, the passage discusses all of the following solutions to password fatigue except. बताइए आंसर क्या है? Also, for this one, if you need me to go back, let me know.
कंटेक्चुअलाइजेस तन्मय कंटेक्चुअलाइजेस द प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे ये भी सही नहीं है, क्योंकि कंटेक्चुअलाइजेस का द प्रॉब्लम का मतलब होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम फिट हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्रॉब्लम छोड़ो, मान लो मैंने आपको एक एनेक्डोट सुनाया, ठीक है? मैंने बोला कि पता है क्या, यस्टरडे आई वेंट ऑन अ वॉक and while I was climbing the hill, I met a woman and she was very poor and I fell in line with her, in line, you know, we started walking together and I wanted to know the condition of poverty in this area. मैंने डायरेक्ट स्टोरी से शुरू किया। इसके पहले एक्चुअली मुझे आपको बताना चाहिए था, you know what, I am visiting, let us say I am visiting Arunachal Pradesh, and it's a beautiful place, and I want to explore the area more. And for the same reason, yesterday I went on a walk, and on, you know, while climbing the hill, I met a woman, and she was very poor. तो अब जब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अरुणाचल प्रदेश विजिट कर रही हूँ और वहां पे मुझे वो लेडी मिली जो बहुत गरीब थी, तो आई हैव कंटेक्चुअलाइज्ड माय एनेक्डोट। एक जो मैं बता रही हूँ, वहाँ एक लेडी थी, गरीब थी, उससे बात हुई, पता चला गरीबी बहुत ज्यादा है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट है कि द प्लेस आई एम विजिटिंग। सो कंटेक्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो मीन्स कि ये प्रॉब्लम किस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। ये दैट डजंट मेक एनी सेंस हियर, क्योंकि यहाँ जब प्रॉब्लम पहले ही बता दिया था कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले पैसेज में प्रॉब्लम बताया और फिर बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम फिट हो रहा है। दैट इज वाई ये कंटेक्चुअलाइजेस द प्रॉब्लम भी गलत है ई में, एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स बेसिकली, किस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। सो बताइए फिर, व्हाट डू यू से फॉर द नेक्स्ट वन? ऑल ऑफ यू आर सेइंग ई, करेक्ट। ई हैज नॉट बीन डिस्कस्ड। सेकंड का आंसर क्या है? ई, इंटेलिजेंट encryption is not discussed. What is the best synonym of mitigate? We already have discussed it. You have also answered it. Context में भी हमने देख लिया था. Reduce, lessen, mitigate. All right. Not investigate. यहाँ पे देखिए, यहाँ आया था mitigate. Single sign-on authentication and password management can help mitigate the problem, मतलब reduce the problem. फिर लिखा था, but there are drawbacks to both the approaches. तो ऐसा नहीं है ना कि single sign-in and password management can investigate the problem. No, it can reduce the problem. So उसके लिए आपका वर्ड है lesson, यानी LESSEN, reduce. By the way, please write this down as well. If you know it, brilliant. If you don't know it, then please write it down. इसका मतलब क्या होता है generally भी?
Also, if you need me to again go back to the passage, then do let me know. I see a variety of answers here. चलिए एक बार देख लीजिए फॉर ऑल ऑफ यू। दोनों के कंपैरिजन में आपको देखना है ना, तो चेक इट आउट वंस। देखिए दोनों के लिए है, इफ अ यूजर लूजेस और forgets the password required to log into SSO, the user will lose access to all the applications linked. Furthermore, if hacker can crack SSO, he or she will have access to all linked accounts. Users who rely on password management are susceptible to the same problems. तो ये जो problems लिखा है, आपका आंसर इस पे बेस्ड ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन प्रॉब्लम्स है। आगे देखिए, यहाँ से आपका आंसर आता है, बट दे ऑल्सो इनकर, जो पासवर्ड मैनेजमेंट यूज करते हैं, दे ऑल्सो इनकर द एडेड थ्रेट ऑफ पासवर्ड्स बीइंग compromised because of computer theft, and that is what the question is based on, कि SSO may be safer than password management, मतलब पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एडेड थ्रेट क्या है आपको वो मार्क करना है। तो वो बस ए में दिया है ना, स्टोलन पर्सनल कंप्यूटर्स कंटेन पासवर्ड्स, तो आंसर ये हो गया। और रिमेनिंग जो भी थ्रेट था वो तो दोनों में कॉमन है। ऑलराइट, रिमेनिंग जो था वो पूरा हमने पढ़ा, पर वो तो कॉमन था। क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है कॉमन थ्रेड क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है एसएसओ इज सेफर देन पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि पासवर्ड मैनेजमेंट में और एक्स्ट्रा थ्रेड क्या है, तो दैट्स ए, दैट इज व्हाई द आंसर इज वन ओनली। कंप्यूटर अगर चोरी हो जाता है वाला, और रिमेनिंग जो है वो तो दोनों में है ना, इसलिए 2 and 3 मार्क नहीं कर रहे हैं। All right, para 6, take your time, analyze it. In para 6, the author notes that the use of biometrics raises ethical questions concerning privacy. क्या ethical questions? Which of the following situations could be used as an example to illustrate this point? कि ethical questions का द यूज ऑफ बायोमेट्रिक्स, इफ यू गाइस आर, देखिए ये पहले तो ये ऑप्शंस पैसेज में दिए नहीं है, पैसेज में बस दिया है कि बायोमेट्रिक्स क्या है, तो वो आप चेक कर सकते हो। देखिए लिखा है बायोमेट्रिक्स, दिस इज द मेथड,
This is a method of recognizing human users based on unique traits such as fingerprints, voice, or DNA. That is what biometrics is. Method of recognizing human users based on unique traits such as fingerprints, voice, और DNA. ठीक है, ये होता है. अब देख लीजिए. Question है, use of biometrics can raise or raises ethical questions concerning privacy. First of all, here you can eliminate options. A देखिए, a thief steals a personal computer with password management software and gains access. So this is not biometrics. गया. पहले तो बायोमेट्रिक्स से क्या एथिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग प्राइवेसी, वो देखने के पहले वो तो हम ऑप्शंस चूज करें जिसमें बायोमेट्रिक्स हो. बी एन एम्प्लॉय और अ कंपनी यूजेस वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, सो दिस इज बायोमेट्रिक्स. अब आगे देखिए इसमें एथिकल क्वेश्चन आ रहा है या नहीं. सी देखते हैं, कंप्यूटर हैकर गेन्स एक्सेस टू अ सिस्टम दैट यूजेस एसएसओ, सो दिस इज नॉट इवन बायोमेट्रिक्स. अ कंपनी दैट एम्प्लॉयज फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो ये बायोमेट्रिक्स है. आगे आपको चेक करना है कोई एथिकल डिलेमा या एथिकल क्वेश्चन यहाँ पे आता है या नहीं. E, even when a person is on password protected websites, internet browser tracks the person, ये भी बायोमेट्रिक्स नहीं है. बायोमेट्रिक केवल बी और डी में है. अब इन दोनों में आपको देखना है कि कहाँ पे एथिकल क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं. एथिकल क्वेश्चन रेज होने का मतलब ये हुआ कि आपने अपना बायोमेट्रिक्स दिया है किसी को, राइट. यानी कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे एंट्री के लिए फिंगरप्रिंट यूज होता है, और ये हो गया आपका बायोमेट्रिक्स, राइट. आपने वो दे के रखा है. अब वो कंपनी आपका ये बायोमेट्रिक्स का डेटा किसी और को अगर प्रोवाइड कर देती है तो ये एक एथिकल क्वेश्चन आ जाएगा. इट वुड बी अ क्वेश्चन ऑन एथिक्स, राइट. तो उस तरह का आपको एग्जाम्पल ढूंढना है. देखिए बी नहीं होगा, बिकॉज बी जो लिखा है वो तो किसी भी केस में हो सकता है. वो आप वॉइस रिकग्निशन यूज करें या पासवर्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे इट हैज नथिंग टू डू विद बायोमेट्रिक हियर. इट्स एक्चुअली आपने अपना डेटा छोड़ दिया, आप कहीं चले गए, कोई और आके पढ़ लिया. बट डी में लिखा है कि आपने फिंगरप्रिंट दिया है अपनी कंपनी को, बट अब वही कंपनी वो फिंगरप्रिंट लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को दे देती है. जब वायलेंट क्राइम्स हुए हैं उस एरिया में, तो आप सबके फिंगरप्रिंट दे दिए. सोच के लगता है कि ठीक तो किया, न्यूट्रली सोच के लगता है, बट ये एक एथिकल क्वेश्चन है. डू दे हैव द राइट टू गिव एवरीबडीज फिंगरप्रिंट टू द पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट में भी तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स नॉट. बट वहां पे अगर मिसयूज हो गया तो आई मीन आपके यू माइट नॉट लाइक, आप शक के दायरे में आते भी नहीं है, फिर भी आपका पूरा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा, राइट. तो थोड़ा ट्विस्टी बनाते हैं क्वेश्चंस को, ये थोड़ा रीजनिंग में आ जाता है. इतना सिंपल नहीं करेंगे ना. ये वायलेंट क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट ने इसलिए लिख दिया कि स्टूडेंट सोचे कि नहीं ये अनएथिकल कहाँ है, ये तो एथिकल है. बट ये एक्चुअली अनएथिकल है, क्योंकि इवेंचुअली आपका पूरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा विदाउट योर कंसेंट दे दिया गया. ऑलराइट. या Okay, seventh one. In the final para, the author's tone can be described as option. देखिए, then I'll show you the final para. Angry, resigned, confused, hopeful, and depressed. सबके मीनिंग सबको पता है. Resigned का मीनिंग मैं बता देती हूँ. Resigned ये वो वाला resignation नहीं है कि जॉब छोड़ दिया. Resigned as an attitude means when we accept the negative things the way they are. ये ठीक है यार, चलो अभी, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते मोस्ट प्रोबेबली, या फिर कुछ करने का ट्राई किया भी तो भी कुछ हुआ नहीं. तो नेगेटिव सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है अब ऐसे ही चलेगा, इज रिजाइंड एटीट्यूड. चेक आउट द लास्ट पैरा.
The problems, this part. या यहाँ पे लिखा है कि प्रॉब्लम्स हैं, इस सोल्यूशन के भी प्रॉब्लम्स हैं, बट अभी कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन हमारे पास है नहीं, तो हमको ये खराब सिस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट इज़ रिजाइंड एटीट्यूड की ठीक है, नेगेटिव है पर यही है। सो यस, दैट्स रिजाइंड, परफेक्ट। OTP login is a good solution, yeah. All right. चलिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं. Let me tell you about the subscription plans. We have the Plus and the Iconic subscriptions for you. In Plus, you get live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access, and study material. In Iconic, you get everything that comes with Plus. Along with that, there is personal guidance, study planner, experts guidance, and test analysis. Uh, for Plus subscription, the price points are 6 months, 18 months, and 24 months, 16,400, 28,550, and 32,800. You can use the code Sharmaji and get 10% off. For Iconic, the price points are for 6 months is 25,800, 12 months is 39,500, and 24 months is 59,999. Again, you can use the code Sharmaji, get 10% off. And if you're a student who scored 80 percentile or above in the last CAT, then you can use the same code Sharmaji and get 30% off. All right, guys, I'll sign out for now and I'll see you tomorrow at 2:30 in the afternoon. Take care. Have a good night.